Good morning, dear students. My subject is PSP, Power System Planning, and the today topic is that disadvantages of interconnected system. So let us start with my topic, disadvantages of interconnected system. So the disadvantages of interconnected system is that first disadvantage is that expensive tie line, यानी कि महंगी टाई लाइन की इसमें आवश्यकता होती है. सेकंड इज दैट सिंक्रोनाइजिंग प्रॉब्लम, सिंक्रोनाइजेशन की यहाँ पे प्रॉब्लम होती है. थर्ड डिसएडवांटेज इज दैट एक्सपेंसिव सर्किट ब्रेकर, एक्सपेंसिव सर्किट महंगे सर्किट ब्रेकर होते हैं, महंगे सर्किट ब्रेकर की रिक्वायरमेंट्स होती है. फोर्थ डिसएडवांटेज इज दैट मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द इंटरकनेक्टेड सिस्टम. इंटरकनेक्टेड सिस्टम के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है. ठीक है. द इंटरकनेक्टेड सिस्टम हैज मोर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरकनेक्टेड सिस्टम के साथ एसोसिएट है उसके बारे में हम स्टडी करें. तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम हैज मोर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. इंटरकनेक्टेड सिस्टम के बहुत से एडवांटेज होते हैं, बहुत से डिसएडवांटेजेस होते हैं. That is the reason, यही रीजन है the actual power in system is the interconnected network. यानी कि हमारा जो वास्तविक पावर सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है. इसी रीजन के कारण जो एक्चुअल पावर सिस्टम है वो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है. But these are some problems that are associated with the satisfactory implementation. लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं that are associated with the satisfactory implementation, जो satisfactory implementation के साथ एसोसिएट है. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सही इम्प्लीमेंटेशन के साथ एसोसिएट है, जुड़ी हुई है. उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वोल्टेज कंट्रोल. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट वोल्टेज कंट्रोल. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट voltage control. In the first problem is that voltage control. Voltage control. In the interconnected system, in the interconnected system, interconnected system, in the interconnected system, interconnected system, the voltage is an important parameter. The voltage is an important parameter. 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 And it must remain constant. और यह कांस्टेंट रहना चाहिए. It must remain constant. It must remain constant. It must remain constant at any point of the network. At any point of the network. Any point of the network. Of the network. The system voltage decrease due to high inductive load demand. The system voltage decrease due to high inductive load demand. Due to high inductive load demand. Inductive load demand. Load demand. Generally, this problem is occurring. Generally, this problem is occurring. This problem is occurring. This problem is occurring. Occurring in the summer season. This problem is occurring in the summer season. In the summer season. Summer season, because of the use of air conditioners, because of the use of air conditioners, use of air conditioners,
because of the use of air conditioners, water pumps and fans, water pumps and fans water pumps and fans. This problem can be solved by 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 meeting the reactive power requirement. 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 For this purpose, shunt capacitor is used. For this purpose, shunt capacitance is used at the load center. Shunt capacitor is used at the load center. Capacitance is used at the load center. At the load center. This is the first problem associated with the interconnected system. First is the voltage control. In the interconnected system, the voltage is an important parameter. Interconnected system में voltage एक महत्वपूर्ण important parameter है, and it must remain constant at any point of the network. यह जो वोल्टेज है वो कोई भी नेटवर्क के कोई भी पॉइंट पर ये कांस्टेंट रहना चाहिए. जो वोल्टेज की वैल्यू है वो नेटवर्क के कोई भी पॉइंट पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए. द सिस्टम वोल्टेज डिक्रीज ड्यू टू हाई इंडक्टिव लोड डिमांड. सिस्टम का जो वोल्टेज है वो डिक्रीज क्यों होता है? जब ज्यादा इंडक्टिव लोड की डिमांड होगी तो उसकी वजह से जो सिस्टम का वोल्टेज है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है. जनरली दिस प्रॉब्लम इज अकरिंग इन द समर सीजन. इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है जनरली वो समर सीजन में आती है. गर्मियों वाले दिनों में ये वाली प्रॉब्लम है वो ज्यादा आती है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एयर कंडीशनर. क्योंकि गर्मियों के दिनों में समर सीजन में एयर कंडीशनर का उपयोग होता है, वाटर पंप्स का उपयोग होता है एंड फैंस और फैंस का उपयोग होता है. दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय मीटिंग द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट. इस प्रॉब्लम को रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट मीट करने के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए शंट कैपेसिटेंस इज यूज्ड एट द लोड सेंटर. लोड सेंटर पर इस पर्पज के लिए क्या लगाते हैं? शंट कैपेसिटेंस का उपयोग करते हैं. शंट कैपेसिटर हम लोड सेंटर्स पर लगाते हैं. ठीक है, इस पर्पज के लिए शंट कैपेसिटेंस का लोड सेंटर का उपयोग करते हैं या लोड सेंटर पर इस पर्पज के लिए शंट कैपेसिटर लगाते हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेकंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद the interconnected system is that communication. Second problem is that communication. Second problem is that communication. This is the second problem. Communication. The communication facility is not sufficient to provide better operation in the interconnected power system. Better operation in the interconnected power system. Interconnected power system because of the available frequency spectrum. Because of the available frequency spectrum
available frequency spectrum because of the available frequency spectrum is congested because of the available frequency spectrum is congested. This problem is occurring present. This problem is occurring in present communication technique. Present communication techniques. That is power line carrier communication. Power line carrier communication, which is called PLCC, power line carrier communication. To overcome this problem, PLCC technique. To overcome this problem, we have to use other communication techniques. Other communication techniques like fiber optics and multiple system fiber optics and multiple system digital microwave system. Second problem associated with the interconnected system is that communication. The communication facility is not sufficient to provide better operation in the interconnected power system. जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी है वो सफिशिएंट नहीं होती है कि इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में बेटर ऑपरेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी है वो सफिशिएंट नहीं होती है. द कम्युनिकेशन फैसिलिटी इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड बेटर ऑपरेशन इन द इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम. इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में बेटर ऑपरेशन प्रोवाइड करने के लिए कम्युनिकेशन फैसिलिटी सफिशिएंट नहीं होती है बिकॉज ऑफ क्योंकि द अवेलेबल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज कंजेस्टेड. क्योंकि जो इसका जो अवेलेबल उपलब्ध फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो कंजेस्टेड होता है. ठीक है. दिस प्रॉब्लम इज अकरिंग इन प्रेजेंट कम्युनिकेशन टेक्निक. ये जो प्रॉब्लम है किसकी कम्युनिकेशन फैसिलिटी की, ये प्रॉब्लम प्रेजेंट कम्युनिकेशन टेक्निक में अगर होती है उत्पन्न होती है. ठीक है. ये जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंटली जो कम्युनिकेशन टेक्निक उपयोग में आ रही है उसमें ज्यादा होती है. दैट इज द पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन. जैसे कि किसमें ज्यादा होती है, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन टेक्निक में, पीएलसीसी टेक्निक विच इज कॉल्ड पीएलसीसी. तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा प्रेजेंट कम्युनिकेशन टेक्निक में होती है जिनमें हमारा आता है पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन विच इज कॉल्ड पीएलसीसी टेक्निक. पीएलसीसी टेक्निक में ये प्रॉब्लम वर्तमान में सबसे ज्यादा होती है. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वी हैव टू यूज अदर कम्युनिकेशन टेक्निक्स. हम दूसरी कम्युनिकेशन टेक्निक्स का उपयोग करते हैं. वो टेक्निक कौन सी है, दूसरी टेक्निक जो हम उपयोग करते हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो है फाइबर ऑप्टिक्स एंड मल्टीपल सिस्टम डिजिटल माइक्रोवेव सिस्टम. यानी फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा मल्टीपल सिस्टम डिजिटल माइक्रोवेव सिस्टम के द्वारा हम जो इस प्रॉब्लम्स को, जो कम्युनिकेशन की टेक्निक्स की प्रॉब्लम है उसको हम दूर करते हैं. दूसरी कम्युनिकेशन टेक्निक्स के द्वारा
हम इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। कौन सी टेक्निक्स काम में लेके, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स टेक्निक काम में लेके, और दूसरी टेक्निक है मल्टीपल सिस्टम डिजिटल माइक्रोवेव सिस्टम। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तीसरा पॉइंट हमारा आता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। थर्ड पॉइंट इज दैट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। Now the third point is that which is the problems associated with the interconnected system. Third point is that frequency control. Frequency control. Frequency control. In this point, the frequency is inversely proportional to the frequency is inversely proportional to frequency is inversely proportional to the load demand. Load demand. If load demand is increasing, load demand is increasing, then the frequency is decreased. And vice versa. In the case of peak load demand, the frequency is very low. In the case of peak load demand, the frequency is very low. The system frequency should maintain between 48.5 to 50.5 hertz. 50.5 hertz. If system frequency is not in this range, if system frequency is not in this range, if system frequency is not in this range, in this condition frequency relay will operate. In this condition frequency relay will operate. Frequency relay will operate. And disconnect the load. This is the next disadvantage problems associated with interconnected system. Third problem is that frequency control. The frequency is inversely proportional to load demand. जो frequency है वो load demand के inversely proportional होती है. If load demand is increasing, यदि load demand बढ़ रही है, frequency is decrease, तो frequency decrease हो जाती है. ठीक है, यदि load demand बढ़ रही है तो frequency की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है. frequency decrease हो जाती है. And vice versa.
यदि लोड डिमांड कम हो रही है तो लोड डिमांड कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यदि लोड डिमांड इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और यदि लोड डिमांड डिक्रीजिंग है, डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इन द केस ऑफ पीक लोड डिमांड के केस में फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। इन द केस ऑफ पीक लोड डिमांड द फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो। पीक लोड डिमांड के केस में फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। द सिस्टम फ्रीक्वेंसी शुड मेंटेन बिटवीन द 48.5 टू 50.5 किलोहर्ट्ज। जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो 48.5 से 50.5 हर्ट्ज के बीच में मेंटेन रहनी चाहिए। इफ सिस्टम फ्रीक्वेंसी इज नॉट इन दिस रेंज, यदि सिस्टम फ्रीक्वेंसी इस रेंज में नहीं होगी, इन दिस कंडीशन फ्रीक्वेंसी रिले विल ऑपरेट। तो ऐसी कंडीशन में यदि इस रेंज में यदि फ्रीक्वेंसी की रेंज नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी रिले आपकी ऑपरेट कर जाएगी एंड डिस्कनेक्ट द लोड, और वो क्या कर देगी, लोड को डिस्कनेक्ट करा देगी, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है अगला फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जो डिसएडवांटेज है। अगला पॉइंट है आपका मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। फोर्थ पॉइंट इज दैट, इसको मैं ऐसे ही समझा देता हूं, मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसको मैं ऐसे ही समझा देता हूं। देखो इसमें होगा क्या, पहले पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अगला हमारा पॉइंट है फोर्थ नंबर का मीटरिंग, जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड है इंटरकनेक्टेड सिस्टम के साथ, मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। एंड फिफ्थ पॉइंट इज दैट, फिफ्थ पॉइंट आपका है शॉर्टेज ऑफ रिजर्व कैपेसिटी, शॉर्टेज ऑफ रिजर्व कैपेसिटी। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट, सिक्स्थ इज दैट सिंक्रोनाइजिंग प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले फोर्थ नंबर के पॉइंट की हम डिस्कस करते हैं। एट ए डिफरेंट स्टेज ऑफ पावर सिस्टम नेटवर्क की अलग अलग स्टेज पर द मीटर्स एंड सेंसर्स प्लेस्ड टू मेजर द लाइन वोल्टेज, लाइक वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। तो जो हमारा पावर सिस्टम नेटवर्क की अलग अलग स्टेजेस पर जो मीटर्स है और सेंसर है वो हम प्लेस करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, एक्टिव पावर को मेजर करने के लिए, रिएक्टिव पावर को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में इसमें दूसरा पॉइंट है, दीज मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी कॉस्टली। ये जो मीटर्स होते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लेते हैं काम में वो बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। और लोड फोरकास्टिंग के लिए एंड फ्यूचर कैलकुलेशन, और फ्यूचर की कैलकुलेशन के लिए, लोड फोरकास्टिंग के लिए और फ्यूचर कैलकुलेशन के लिए ए रिकॉर्ड ऑफ दिस मेजरमेंट विल रिक्वायर्ड। इस मेजरमेंट इक्विपमेंट का जो रिकॉर्ड है वो उसकी हमें आवश्यकता होती है। सो इट इज नेसेसरी टू इंस्टॉल ए सीक्वेंशियल रिकॉर्डर, डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर etc। इसलिए यह आवश्यक है कि जो हम सीक्वेंशियल रिकॉर्डर को इंस्टॉल करें और डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर etc को हम इंस्टॉल करें, इनकी हमें यह आवश्यक है, ठीक है। सो इट इज नेसेसरी, इसलिए यह आवश्यक है टू इंस्टॉल ए सीक्वेंशियल रिकॉर्डर, सीक्वेंशियल रिकॉर्डर इंस्टॉल करना और डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर, इनको etc एक्सेट्रा इनको इंस्टॉल करना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है शॉर्टेज ऑफ रिजर्व कैपेसिटी, फिफ्थ नंबर। इन द केस ऑफ पीक लोड के केस में द लोड डिमांड इज मोर देन पावर जनरेशन। पीक लोड के केस में जो लोड डिमांड है वो पावर जनरेशन से ज्यादा होती है, लोड डिमांड है वो पावर जनरेशन से क्या होती है, ज्यादा होती है। इन द पीक लोड कंडीशन में लोड डिमांड पावर जनरेशन से ज्यादा होती है। इन दिस कंडीशन इफ एवरी पावर स्टेशन हैज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व पावर देन इट कैन बी यूज्ड टू मीट डिमांड। इस कंडीशन में प्रत्येक पावर स्टेशन हैज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व पावर, प्रत्येक पावर स्टेशन पे सर्टेन अमाउंट की रिजर्व पावर होती है, ठीक है। दैट इट कैन बी यूज्ड टू मीट डिमांड, जो डिमांड को पूरी करने के लिए जो इस रिजर्व पावर का क्या करता है, उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी पीक लोड कंडीशन के टाइम पे, पीक लोड के केस में लोड डिमांड है वो पावर जनरेशन से ज्यादा होती है। इस कंडीशन में प्रत्येक पावर
पूरा करने के लिए उपयोग में आती है। दिस इज ऑल्सो यूजफुल टू मीट मिनट टू मिनट वेरिएशन इन लोड, यानी ये लोड में जो मिनट टू मिनट वेरिएशन हो रहे हैं उनको पूरा करने के लिए भी ये जो है वो उपयोगी है। एंड लोड ब्रॉडकास्टिंग एरर, लोड ब्रॉडकास्टिंग में जो एरर आ रही है उनको भी सही करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, दिस कैन बी क्लासिफाइड टू टाइप्स, इन रिजल्ट को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज द क्लाउड रिजल्ट, CLOD क्लाउड रिजल्ट, और सेकंड इज द ऑपरेटिंग रिजल्ट, क्लाउड या कोल्ड रिजल्ट एंड सेकंड इज दैट ऑपरेटिंग रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आती है लास्ट प्रॉब्लम इज दैट सिंक्रोनाइजिंग प्रॉब्लम। इन एन इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में ऑल द जनरेटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सभी जनरेटर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। एंड इट मस्ट बी ऑपरेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी, और सभी जनरेटर्स हैं वो समान फ्रीक्वेंसी पे, जो सभी जनरेटर्स पैरेलल में ऑपरेट होती हैं, पैरेलल में ऑपरेट होते हैं इंटरकनेक्टेड सिस्टम में। एंड इट मस्ट बी ऑपरेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी, और ये समान फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होने चाहिए। इफ दिस डज नॉट हैपन, यदि ऐसा नहीं होता है, यदि ये समान फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट नहीं होते हैं, या जो हमारा जो यदि ये समान फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट नहीं होता है होते हैं, यदि ऐसा नहीं होता है, दिस डज नॉट हैपन, यदि ऐसा नहीं होता है, देन एनी जनरेटर ऑफ सिस्टम में गो आउट ऑफ स्टेट, तो कोई भी जनरेटर आपका सिस्टम का आउट ऑफ स्टेट कंडीशन में चला जाता है। आउट ऑफ स्टेट कंडीशन बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ब्रेकअप, क्योंकि पर्टिकुलर जनरेटर का सिंक्रोनाइजेशन ब्रेकअप हो जाता है, सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से वो आउट ऑफ सर्विस में चला जाता है, या जो हम ये कह सकते हैं आउट ऑफ स्टेट में चला जाता है, क्योंकि उसका जो जनरेटर का है वो सिंक्रोनाइजेशन ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इन द रोस्ट कंडीशन, एंड रोस्ट कंडीशन की बात करें तो रोस्ट कंडीशन में इन द रोस्ट कंडीशन द ब्रेकआउट कंडीशन में क्रिएट, यानी रोस्ट कंडीशन में ब्रेकआउट की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, ब्रेकआउट की समस्या भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ब्रेकआउट की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है रोस्ट कंडीशन में। ठीक है, सो इट इज ए नेसेसरी कंडीशन टू ऑपरेट ऑल द जनरेटिंग स्टेशंस इन द सिंक्रोनाइज्ड मैनर, इसलिए ये आवश्यक है कि जो भी सारे जनरेटिंग स्टेशन जो ऑपरेट कर रहे हैं वो सिंक्रोनाइज्ड मैनर में ऑपरेट करें। सो इट इज नेसेसरी कंडीशन टू ऑपरेट ऑल द जनरेटिंग स्टेशन इन द सिंक्रोनाइज्ड मैनर, इसलिए ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि सारे जनरेटिंग स्टेशन है वो सिंक्रोनाइज्ड मैनर में ऑपरेट करें। ठीक है, तो सारे जनरेटर्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड मैनर में ऑपरेट करें, इसलिए ये एक जो है नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, कि सारे जनरेटर्स हमारे किसमें करें, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में ऑपरेट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।